Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So now just 13 days are left as far as IBPS RRB first exam is concerned. And we have to focus on the examination. Whether exam will happen on 12th September or not, admit cards may be out during the coming week, and all these uncertainties are there. But still, we should keep our focus on exam. So my advice is in next 13 days, you should attempt around 6 mock tests. Because I always recommend as we approach the exam, we should attempt mock tests only on alternate day. Don't overburden yourself with daily mock test because more and more exams before examination will result into fatigue, and that tiredness, that fatigue can affect you in the real examination. So the purpose of mock test is identification of our weakness. So that can be achieved by attempting one mock test. Say you are attempting one mock test today, spend 1 hour there, and then identify your weak areas and jot down the weak areas and focus on those areas through basic textbooks. An excellent mock test I have already recommended. Link is available in description and comment column. You should subscribe it and start using it. And I have observed that so many people are getting the job through advice of this channel, and I am happy to share with you today morning, yesterday night, I received a message, sir, this is the SMS message of my first salary. He shared the message with me and I was very happy. Although out of that WhatsApp message, that detail of salary I have deleted because I cannot make it public. The rest of the message I have posted on the wall of this channel. And this is the happiness that I derive when you get the job, when you share your happiness with me. And that makes my day. That is the most happy day for me, when I find that my effort is bringing happiness in your life. Around 11,000 subscribers are there on this channel. Those are already working in banks, insurance companies, or other jobs. And somewhere in their life, this channel helped them. The purpose of this channel is to show you right advice, to give you right advice at right time. If you follow that, you are bound to clear. So if I say attempt this particular mock test, means it is the right advice, because after a lot of effort I have found a mock test which gives you quality material which can help you to get success. Similarly, if I recommend you use this link for current affairs, that means I have identified that source to be good for you. If I tell you what is to be done during these hours, what is not to be done during these hours, this I have found by experience, how the candidates are wasting their time and how they can conserve the time and focus on study so that they get clear. So you should, after identification of your weakness, your focus should be to read these topics from basic textbooks. The textbook can be of NCERT, CBSE level, easily available on Google search. For quant, you can use that. For reasoning, a particular type of reasoning, how it is solved, read that material, it will give you insight. Because sometimes we are overconfident, I know everything. But once I read that text material, I come to know where I am lacking. Because if you cover your lacking area, you are the winner. So God bless you. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. केवल 13 दिन अब हमारे पास बचे हैं IBPS RRB के एग्जाम के. मेरा मानना यह है कि इन 13 दिन में आपको 6 मॉक टेस्ट करने चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट की अधिकता भी आपके अंदर थकावट लाएगी, और उस थकावट से क्या होगा, जो रियल एग्जाम है उसके अंदर आपको दिक्कत आ सकती है. तो बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है मॉक टेस्ट की. मॉक टेस्ट है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आपको आपकी कमियां ढूंढने में मदद करता है.
तो यदि हम उसको अल्टरनेट डे पे भी यूज़ कर लेंगे तो हमारा मकसद अचीव हो जाएगा। तो अभी आपको क्या करना चाहिए कि जो मॉक टेस्ट मैंने आपको सजेस्ट किया वो डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, कमेंट कॉलम में भी लिंक है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हज़ारों लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है, आप भी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें से एक मॉक टेस्ट आप अटैम्प्ट करिए, उसके बाद उसका सोल्यूशन देखिए, एनालिसिस देखिए, अपनी कमियां ढूंढिए। जब आप अपनी कमियां ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं, आप इसी पे आपको पूरे 2 दिन लगा देने चाहिए स्टडी के अंदर, उसके बेसिक टेक्स्ट बुक से, एनसीईआरटी की बुक से, सीबीएसई की बुक से, जो भी सोर्स मिले, मीन्स टॉपिक पढ़ना है आपने। ऐसे रीजनिंग में जिस तरह के क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उसको सॉल्व करने के क्या तरीके हैं उसके ऊपर ध्यान देना है। अब आज सुबह मतलब ये कह सकते हैं लगभग कल रात को एक मैसेज आया कि सर मुझे प्यारी सैलरी मिली है, ये मैसेज है। इतनी खुशी होती है ऐसी खबरें सुन के कि हाँ, हमारे एफर्ट से कुछ लोगों की ज़िंदगी में खुशी आ रही है। वो मैसेज मैंने आपको व्हाट्सएप की इस पे यूट्यूब के वॉल पे भी लगाया, ऑल्दो जो पैसे वाला मैसेज था उसके अंदर वो मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि ठीक नहीं है उसको ज़्यादा पब्लिक करना, क्योंकि कई बार उसमें डिटेल्स भी होती हैं और ये सोशल मीडिया है, हर तरह के लोग इस पे होते हैं। पर आप ये देखिए कि उस कैंडिडेट को कितनी खुशी मिली है, उसने मेरे साथ शेयर किया है कि मुझे इतने पैसे मेरे अकाउंट में आ गए हैं। ये एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है इस यूट्यूब चैनल का। हज़ारों लोगों की ज़िंदगी में हम खुशी ला चुके हैं इस चैनल के थ्रू। 11,000 से अधिक आज ऐसे लोग हैं जिन्होंने राइट एडवाइस एट राइट टाइम के थ्रू आज या तो बैंकिंग में नौकरी कर रहे हैं या इंश्योरेंस में नौकरी कर रहे हैं या अदर सेक्टर्स में नौकरी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी में इस चैनल ने कुछ रोल अदा किया है, उनको सही रास्ता दिखाया। किसी वीडियो से हो सकता है उनको मोटिवेशन मिली हो, किसी वीडियो से उनकी बैंकिंग की नॉलेज बढ़ी हो। अब मेरे बताए हुए मॉक टेस्ट को यूज़ करके शायद उनमें इम्प्रूवमेंट आई हो, मेरे बताए हुए कुछ और चीज़ों को बता के उनके जीवन में परिवर्तन आया हो। ये जो हमारा उद्देश्य है कि आपको सही ट्रैक पर रखना, वो चीज़ें बताना जहाँ आपका टाइम ख़राब हो रहा है ना करें वहाँ पे टाइम ख़राब, कहाँ पर टाइम लगाना है ये आपको बताना। यही राइट एडवाइस एट राइट टाइम होता है और छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़ा जीवन में परिवर्तन आ जाता है। अब आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया, आपको पता लग गया कि ये टॉपिक मेरे कमज़ोर है, इनको पढ़िए। जैसे जैसे आप अपनी कमजोरियों को दूर करते जाएंगे आप खुद ही देखेंगे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, आपके मॉक में भी मार्क्स बढ़ते चले जा रहे हैं और आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करने में कामयाब हो जाएंगे। आप देखेंगे कितने लोग हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो मुझे अपना स्क्रीनशॉट भी भेजते हैं, वो मैं उनके इंकरेजमेंट के लिए अपने चैनल की वॉल पे भी लगाता हूँ। मकसद क्या, एक दूसरे से देख के हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने इरादों को हम बुलंद कर सकते हैं। और यदि हम बेकार की डिस्कशन से हट के पढ़ाई पे लगे रहेंगे हम जरूर कामयाब होंगे। देखो, अच्छा बुरा वक्त आना जाना है, ये कोई सोचे कि यही वक्त बना रहेगा, ऐसा नहीं होता है। इस समय क्रिटिकल फेज है, सबको पता है, पर उसी की चर्चा हर समय अगर हम करते रहेंगे तो भी हमारा टाइम खराब होगा। कई लोग उसमें लगे रहते हैं, बट मेरा चैनल में मैं कोशिश करता हूँ आपको मैं पढ़ाई पे केंद्रित रखूँ, अपने टारगेट पे केंद्रित रखूँ, उसी से आप जीवन में सफल होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।